Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is human capital formation in India. Right? Human capital formation. Human means human being. Capital means वो किस तरह से इकोनॉमी की कैपिटल होती है, ठीक है. एंड फॉर्मेशन की ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है हमारे इंडिया में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट. So firstly we should understand the concept like human capital and human capital formation. Human capital is the human being who are filled with या who having the proper skills and experience, ठीक है. That is basically human capital, and human capital formation is the process basically to provide the education, to make the individual skillful, make experienced. That is the basically process which is known as human capital formation. And human capital वो बंदे जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइजेशन है अपने काम के लिए, एक्सपर्ट हैं वो अपने काम में, ठीक है ना. ये देखो, human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education, experience which are essential for the economic and the political development of a country. So it's a formation is the basically process, and human capital is basically different from human capital, physical capital and financial capital, because physical capital we know that like machinery, plants वगैरह, ठीक है ना. So financial is money, so human capital is different from them. And now the question arises that how we develop the human capital formation. हम किस तरह से human being को skilled, educated and experienced person बना सकते हैं, उनके क्या sources हैं. The first sources is expenditure on the education. Very true, बिकॉज जब हम गवर्नमेंट है या कोई भी है, अगर वो एजुकेशन के फील्ड में एक्सपेंडिचर्स करेंगे, खर्चा करेंगे, एजुकेशन को इंक्रीज़ करेंगे, उनकी ग्रोथ करेंगे, देन डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है. बिकॉज मोस्ट फैमिलीज डिसाइडेड टू इंकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू राइज लोन्स, ठीक है, वो लोन्स भी लेते हैं. सो रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर्स आर सब्सटेंशियली large. So education enables an individual to make a good living throughout his life. So education is very important, ठीक है ना. So education में अगर हम खर्चा करेंगे तो definitely we are able to form human capital, ठीक है. Next is एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. बिल्कुल, जैसे एक बोला जाता है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. बिकॉज अगर हम लोग एजुकेटेड हैं बट स्टिल हम लोग फिट नहीं हैं, हम लोग बीमार हैं, देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड वर्क विद अवर फुल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है. सो हम मोर प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे इन दोस केस, एंड वी कैन नॉट एड अप टू द GDP ऑफ द इकोनॉमी. सो अल्टीमेटली फिट पर्सन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज सेम एज द एजुकेटेड person. So expenditure on health also. Now on the job training, yes, there are so many job trainings programs because technology, environment, economy, it's a very dynamic phenomena which changes time to time. So ultimately just to bring the more efficient and expert employees, or there is very essential to provide them proper training on the job training. Like there are many people who are start working after they're completing their degree and the graduation, but they do not have any practical knowledge about that. So in that case also the on the job training provide them desirable skills so that they can perform their work with the effective and efficient manner, and ultimately it enhance their personality, enhance their skills, enhance their creativity also. So ultimately on the job training, expenditure on the job training is also contributed in the field of human capital formation. Like firms are always inclined to undertake on the job training programs because returns far exceed the cost of such programs, क्योंकि इसके जो returns होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर हम करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में तो वो वही उनके लिए मोटिवेटेड है, बिकॉज वो काम फिर एम्प्लॉयज़ उनके बहुत अच्छे से करेंगे. अगर काम बहुत अच्छे से होगा तो प्रॉफिट बहुत अच्छे से अर्न होगा.
नाउ द स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट, बिल्कुल अडल्ट के लिए स्टडीज़ प्रोग्राम बनाए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ऐसे पीपल हैं जो मिड में अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है, अपनी एट द प्राइमरी और सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल में। तो गवर्नमेंट एंड NGOs ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर द अडल्ट टू मेक देम प्रोफिशेंट इन देयर वर्क एरिया, उनके वर्क एरिया में प्रोफिशेंट बने, मतलब इसको कह लो कि वोकेशनल एजुकेशन भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसके बीच में। सो इनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी एंड दिस सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल formation. Now migration also is the one of the source of human capital formation. अगर migration होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तो बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अवर इंडिया। सो स्टेट वाइज माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पर, आपको भी पता है आज के टाइम पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जैसे हम लोग भी हैं, मतलब यहाँ से पढ़कर लोग पंजाब से पुणे जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पर अच्छी सैलरीज हैं, अच्छी जॉब ऑप्शंस हैं, अच्छे उनको कैरियर ऑप्शंस हैं। सो अगर ये माइग्रेशन पॉसिबल है तो अल्टीमेटली वो उस पर्सन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो भी इन्हेंस होती हैं और वो वहाँ जाकर अपने उस चीज़ों को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वन प्लेस टू अनदर इन्वॉल्व ज़रूर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व ज़रूर है, बट अगेन इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। बिकॉज एक अगर एजुकेटेड पर्सन, कहते हैं ना कि वो अगर फ्री बैठा हुआ है और अपने एफर्ट्स को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर अवर economy. Yet the people migrate in search of better job opportunities because gains of migrations are greater than the cost of migrations. क्योंकि अगर एक पर्सन है, ही इज़ वेरी एफिशिएंट इन हिज वर्किंग, बट वो ऐसे एरिया में बैठा है जहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर उसके एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो बेटर है ना कि वो वहाँ से जगह छोड़ कर कहीं और स्टेट पर मूव कर जाए और वहाँ पर उसके एफर्ट्स अच्छे से यूटिलाइज़ होंगे, तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन द इंफॉर्मेशन, यस बिल्कुल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन को, कि जब तक हमें अच्छी एडवांस जॉब्स के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता ही नहीं होगा, एडवांस कोर्सेज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो कैसे हम उनको करेंगे और कैसे हम प्रोडक्टिव बनेंगे। सो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द स्पेशलाइज्ड स्किल्स is an important determinant of skill formation, right? It enable the people to actualize their productive potential. वो अपने productive potential को actually realize करते हैं और उनके accordingly काम को perform करते हैं, right? Now the next is the role of capital formation and human capital formation. अब आपको क्या लगता है कि एक पढ़ा लिखा, skilled, experienced ह्यूमन कैपिटल जो होगा, वो जो है हमारी ग्रोथ की, इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए उसका कोई रोल होगा कि नहीं? डेफिनेटली, ठीक है। फर्स्ट इज चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। अल्टीमेटली जो एक इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसकी थिंकिंग, उनका कॉन्फिडेंस, उनके स्पिरिट, उनके मेंटल एटीट्यूड, एवरीथिंग जो है वो चेंज हो चुकी होती है। वो ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड के साथ काम करता है, एक एस्पिरेशन होता है उसके अंदर, एक स्किल, एक क्यूरियोसिटी होती है टू फाइंड दी समथिंग न्यू और समथिंग रिसोर्सफुल। सो अल्टीमेटली वो एक चेंज जो उनके इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट में आता है, वो एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइड बनता है। क्योंकि एक पर्सन है जो इलिटरेट है, अनप्रोडक्टिव है, उसकी सोच, उसका मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल एक अलग होगा और एक पढ़े लिखे पर्सन का बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो ऑब्वियसली दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द इकोनॉमी। नाउ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल, बिल्कुल। अब एक मशीनरी है, एक मशीनरी को एक अनपढ़ पर्सन जो उसको यूज़ करेगा, डेफिनेटली वो उसको इतने अच्छे मैनर्स से, कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि वो टेक्नोलॉजी चलनी कैसे है। ऐसे ही अगर एक पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस्ड, स्किलफुल पर्सन जो उस चीज़ को परफॉर्म करेगा या उस मशीन को या फिजिकल एसेट्स को यूज़ करेगा, तो वो उसको बहुत बेटर और इफ़ेक्टिव वे से यूटिलाइज़ करेगा, बेटर मैनर से करेगा और वेस्टेज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो देन अगेन अल्टीमेटली इट एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड डेफिनेटली द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी।
इनोवेटिव स्किल्स लेकर आएंगे, एजुकेटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, वो एडवांस क्रिएटिव होगा, एडवांस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और स्किल्स को लेकर आएगा, न्यू टैलेंट को लेकर आएगा, तो ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनोवेशंस आने की एरिया ऑफ प्रोडक्शन में, अदर एक्टिविटीज़ में, और इनोवेशन डेफिनेटली आपको ग्रोथ की तरफ मूव करवाता है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, स्किलफुल होंगे, तो ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो हमारा इक्वालिटी का मोटिव है वो हम अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा हमको, और हम कहीं ना कहीं उसको अचीव करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। द हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल देन इट अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्वालिटी इन द economy. So there is a cause and effect relationship between human capital and the economic growth. There is a positive relationship. और ultimately अगर human capital formation अच्छी होगी तो economy की growth भी अच्छी होगी, economy की growth अच्छी होगी वो भी human capital formation पे impact डालेगी, growth अच्छी होगी, GDP अच्छा होगा, लोग अच्छा कमाएंगे, लोग फिर खर्चा करेंगे एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स पर, माइग्रेशंस पर। सो अल्टीमेटली जब वहाँ भी खर्चा होगा तो फिर अगेन दैट इज़ बेसिकली एक सर्कल की तरह मूव करेगा कि अगर एजुकेशन अच्छी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो ग्रोथ है, ग्रोथ है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ये बाय हैंड ये चलता रहता है एक प्रॉपर वे से। ठीक है, अब देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो बट वी विल डिस्कस दैट इन दी नेक्स्ट वीडियो।